Hello everyone, welcome to our channel The Commerce Catalyst. Today we are going to continue bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement. 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 In this question, prepare bank reconciliation statement as on 30th April 2024, Jyoti Sales Private Limited from the information given below. The questions given in this question, bank overdraft as per cash book on 30th April 2024, 1,10,450. So first in the books of Jyoti Sales. In the books of Jyoti Sales Private Limited. Private PVT Ltd. In exam, you write the Private Limited. So in the books of Jyoti Sales Private Limited, bank reconciliation statement as on 30th April 2024. As on 30th April 2024. Now the format. This is the format. Date, particulars, amount, rupees, amount, rupees. Bank overdraft as per cash book on 30 April 1,10,450. So given the question, balance as per cash book how much? 1,10,450. 1,10,450. 1,10,450. Here is given balance as per cash book, but that is the overdraft. So overdraft is the credit. How you understand the overdraft? Because in question I already told the questions means papa and mummy. जो बोले वही करो. तो if read question properly, you understand. The question given, the bank overdraft as per cash book. Suppose if not given, there is the overdraft. In that situation, you understand how this question said this is the overdraft. So either given the credit or overdraft written in the question. Either given in the balance as per cash book, credit, or balance as per cash book overdraft, या overdraft balance as per cash book, whatever. Either credit written here or overdraft. So you understand these are the unfavorable balance. Okay, it means also written in the unfavorable. Unfavorable. It means in these three terminology, either written in the question credit, because balance as per favorable means cash book favorable balance is the debit.
So if written in the question the credit, it means you have to understand that these are the overdraft. And second one is that either written in the question the overdraft or unfavorable, whatever, either written in the credit or overdraft or unfavorable. So the balance as per cash book credit 1,10,450. Hope you understand. Okay. Now check issued on 20th April 2024 but not yet presented. It means first write on here. The format is like a, here is the add and less. Check issued on 20th April 2024 but not yet presented. How much? 15,000. How much? 15,000. So you write here add or less. So check issued. तो check issued 20th April. It means कैश बुक को हमने क्या किया? कैश बुक को हमने लेस कर दिया. और यहाँ पे इस कोर्स में अगर कैश बुक दिया है तो पासबुक के पास जाना है, बिकॉज हमने पहले ही बता चुका हूँ कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट में बहुत ही अच्छी बात यह है कि आप कहाँ जा रहे हैं उस चीज को जानना जरूरी है. जैसे मैंने बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि अगर हम मैरिज पार्टी में जा रहे हैं तो मैरिज जैसे ड्रेस पहनेंगे, अगर ऑफिस जा रहे हैं तो उस तरह से, और अगर स्पोर्ट्स खेलने के लिए जा रहे हैं तो उस तरह से. तो यहाँ पे अगर आप कैश बुक है तो आप कहाँ जा रहे हैं? पासबुक पे. लेकिन कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस होता तो नॉर्मल में क्या होता कि कैश बुक में क्या हो रहा है यहाँ पे 15,000 कैश बुक में यहाँ पे लेस होगा और पासबुक में जा रहा है. तो चूंकि कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं तो इस केसेस में क्या होना चाहिए था, चूंकि नॉर्मल केस में कि कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं तो पासबुक अभी बढ़ा हुआ है. क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि चेक जो हमने काटा, जो चेक हमने इशू किया वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है. तो इसका मतलब जिसको हमने चेक काटा वो अभी तक पैसा विड्रॉ नहीं किया है. तो इससे पूरा क्लियर ये जा रहा है कि बैंक में हमारा पैसा अभी भी सुरक्षित है, 15,000 से बढ़ा हुआ है. लेकिन हमने ये मान लिया कि हमने 15,000 दे दिए. तो इस सिचुएशन में नॉर्मल केस में कैश बुक से पासबुक हट जाते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए था? बढ़ा देना चाहिए था. लेकिन इस सिचुएशन में चूंकि ये ओवरड्राफ्ट है तो मैंने बोला कि ओवरड्राफ्ट केस में कुछ नहीं करना है, जैसे नॉर्मल में सीखे हैं वैसी तरह से सोचेंगे, लेकिन सिर्फ इसमें क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे, ऑपोजिट. यानी इस क्वेश्चन को अगर हम कैश बुक से पासबुक में जा रहे हैं तो पासबुक में क्या करना चाहिए था? पासबुक चूंकि बढ़ा हुआ तो बढ़ाना चाहिए था बिकॉज कॉन्सेप्ट के हिसाब से. लेकिन ये चूंकि ओवरड्राफ्ट है, चूंकि ये अनफेवरेबल बैलेंस है, तो इस सिचुएशन में हम उसको क्या करेंगे? बढ़ाने के बदले इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे. और वो कितने अमाउंट से घटाएंगे? उस अमाउंट का नाम है 15,000 से हम इसको क्या करेंगे? 15,000 से हम इसको घटा देंगे. तो और क्या लिखेंगे? सिंपल सा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशूड बट not presented for payment. How much? 15,000. Right here 15,000. Have you understand? Now अब हम क्या देखें? फर्स्ट ये समझ में आ गया कि चेक इशूड on 20th April 2024 but not yet presented. How much? 15,000. Second, उसके बाद क्या है? चेक डिपोजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक. अब दूसरा क्या है कि चेक डिपॉजिट हो रहा है, चेक जमा किया लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ बैंक के द्वारा, यानी 22,700 चेक डिपॉजिटेड. तो जब हमने चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक में हमने 22,750 से बढ़ा दिया. नॉर्मल केस में क्या सोचते कि हम कैश बुक से कहाँ जा रहे हैं? पासबुक में. तो कैश बुक हमारा 22,750 से क्या है? बढ़ा हुआ है. लेकिन हम जहां जा रहे हैं पासबुक के पास, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि हम कैश बुक से कहां जा रहे हैं? पासबुक के पास. तो जहां जा रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे. तो पासबुक में इस केस में क्या हो रहा है कि घटा हुआ है. तो क्योंकि चेक डिपॉजिट किया बट नॉट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो बैंक में अभी तक क्रेडिट नहीं किया, तो हमारा पासबुक क्या है? घटा हुआ है. तो कैश बुक से पासबुक जाने तो इस केस में घटाना चाहिए, लेकिन हम इसमें बढ़ा देंगे. व्हाई? बिकॉज ये ओवरड्राफ्ट है. ये क्या है? अनफेवरेबल बैलेंस है. ये
क्रेडिट बैलेंस है, इसीलिए तो फिर इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम नंबर दे के लिखेंगे कि चेक डिपॉजिटेड बट not credited in bank. How much? 22,750. 22,750. Now, check deposited by a customer credited in account was not advised by the bank. चेक डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, एक चेक जो है वो डिपॉजिट कस्टमर के द्वारा डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया गया, लेकिन वो एडवाइस नहीं आया, हमारे पास नहीं आया। तो इसका मतलब हमारा कैश बुक तो क्या है, घटा हुआ था और पासबुक बढ़ा हुआ है, तो हम कैश बुक से पासबुक में जा रहे हैं तो बढ़ाना चाहिए था। लेकिन इस सिचुएशन में चूंकि ये ओवरड्राफ्ट है, तो मैंने बोला जब भी ओवरड्राफ्ट होगा तो हम नॉर्मल सोचेंगे, लेकिन उसके बाद उसको क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। तो इस केस में क्या है कि चेक डिपॉजिटेड बाय कस्टमर क्रेडिटेड इन अकाउंट वाज नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक। बैंक के द्वारा एक कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा कर दिया, वो हाउ मच 47,200, लेकिन वो 47,200 जो बैंक में दिया, बैंक ने मुझे बताया नहीं, एडवाइस नहीं किया, तो हमने अपने कैश बुक में कुछ नहीं किया है। तो इसका मतलब कैश बुक से पासबुक जाना है, तो पासबुक में क्या है, बढ़ा हुआ है, तो हमें बढ़ाना चाहिए था। लेकिन ये ओवरड्राफ्ट है तो बढ़ा करके नहीं, हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे और यही लिख देंगे कि चेक डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, चेक directly deposited check directly deposited by customer but not get advice from bank. How much? 47,200. So right here 47,200. अब नेक्स्ट है कि इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 27 अप्रैल बट नॉट एडवाइस रिसीव। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक ने 27 अप्रैल को क्या किया, इंटरेस्ट डेबिटेड कर दिया। इसका मतलब पासबुक क्या हो गया, घट गया, लेकिन कैश बुक वाले को पता नहीं है, तो कैश बुक से पासबुक में जा रहा है तो घटाना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये एडवर्स सिचुएशन का है, चूंकि ये ओवरड्राफ्ट है, चूंकि ये इसका बैलेंस क्रेडिट है, तो इन सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वंस अगेन क्या है क्वेश्चन कि इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक ऑन 27 अप्रैल 2024 बट नॉट एडवाइस रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। तो हम इंटरेस्ट जो डेबिट कर लिया बैंक ने, तो पासबुक घट गया, तो हम कैश बुक से पासबुक में है तो घटाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये ओवरड्राफ्ट है इसीलिए इसको हम बढ़ाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रेस्ट डायरेक्टली या इंटरेस्ट डेबिटेड, नॉट राइट हियर डायरेक्टली, इंटरेस्ट डेबिटेड by bank but not received advice, not received interest debited by bank but not received advice. It means how much amount, 12,150. so right here 12,150. अब नेक्स्ट, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द ऑथोराइज्ड बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ क्रेडिटेड टू द अकाउंट 22,000। सब्सिडी रिसीव्ड बाय द बैंक, तो बैंक के द्वारा 22,000 सब्सिडी रिसीव्ड किया गया, तो पासबुक हमारा क्रेडिट हो गया, तो कैश बुक से पासबुक में जा रहे हैं तो इसको ऐड करना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये वंस अगेन कि ये क्रेडिट है, अगर यहीं पे डेबिट होता तो फिर जो डायरेक्ट सोच रहे हैं वही लिखते हैं,
लेकिन चूंकि इसका बैलेंस है, इस पर पासबुक क्रेडिट है यानी ओवरड्राफ्ट है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, तो अभी फिर हमने यही बोला कि 22,000 का सब्सिडी रिसीव हुआ बैंक में, बैंक क्रेडिट हो चुका है यानी पासबुक बढ़ा हुआ है, तो हम कैश बुक से कहाँ जा रहे हैं, पासबुक पे, तो बढ़ाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये ओवरड्राफ्ट है तो इस केस में क्या करेंगे, फिर हम इसको भी लेस कर देंगे और लिखेंगे यहाँ पे नंबर 5, सब्सिडी रिसीव्ड, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, हाउ मच, 22,000. Next, amount wrongly debited by the bank 2004. Amount wrongly debited by the bank. बैंक ने क्या किया, फिर गलती से 2400 जो है डेबिट कर दिया, तो 2400 डेबिट कर दिया, इसका मतलब पासबुक घटा हुआ है, तो हम कैश बुक से पासबुक में जा रहे हैं, तो इसे घटाना चाहिए इन नॉर्मल केसेस में, लेकिन चूंकि ये ओवरड्राफ्ट है, चूंकि ये ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्ट में जैसे ही ओवरड्राफ्ट रहेगा तो हम क्या सोचेंगे कि जैसे कैश बुक से हम पासबुक में जा रहे हैं, तो पासबुक चूंकि घटा हुआ है, लेकिन पासबुक घटा हुआ तो है, लेकिन यहाँ पे घटाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं घटाएंगे, बिकॉज ऑफ इसका बैलेंस के जो दिया हुआ है वो ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्ट है तो उस सिचुएशन में घटाएंगे नहीं, क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, क्या लिखेंगे, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक, अमाउंट wrongly debited by the bank, how much amount, amount is 2,400, and amount wrongly credited by the bank. Now 5,000 क्या है, wrongly credit कर लिया, तो क्रेडिट मतलब पासबुक जो है बढ़ा हुआ है, तो कैश बुक में से जा रहे पासबुक तो बढ़ाना चाहिए था, लेकिन इस केस में चूंकि ये ओवरड्राफ्ट है तो बढ़ाएंगे नहीं, क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट नंबर 7, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक, अमाउंट रॉन्गली credited by the bank, how much, 5,000. 5,000. No. 516 718 4 12 1 213 25 27 213 5 516 718 4 12 1 213 25 27 213 37,265, and here write how much, 7 or 5, 12, 14 or 5, 19, 1, 1, 1, 2, 6, 2, 8, 19. Now this is the plus and this is the minus. So 89,000, yeah, right here. 89,000 minus 37,265. 5, 3, 7, 1, 51,735. And right here 51,735.
51,735 minus 1,10,000 51,735. So working 1,10,450 51,735 10,55 431 7 8 58,715. This is the balance as per passbook. Balance as per passbook. Balance as per passbook. Balance as per passbook. Debit. So this is the bank reconciliation statement. In case of overdraft. In overdraft situation, my dear friend, only change if in the question again overdraft, if in the question the overdraft, in such situation what will you do? आपको क्या करना है? आपको जस्ट यही करना है कि जो हम सोचते हैं जैसे कैश बुक से पासबुक में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो उसका जस्ट रिवर्स सोचेंगे। तो जो भी ओवरड्राफ्ट करेगा, जैसे सपोज दैट यहाँ पे रहता है बैलेंस एज पर पासबुक, और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है। लेकिन क्वेश्चन में अगर डेबिट, इधर गिवन डेबिट और गिवन ओवरड्राफ्ट और गिवन अनफेवरेबल, इन दिस three word if mentioned in the question it means unfavorable, it means ये ओवरड्राफ्ट है और ये अपोजिट सोचना है। जैसे नॉर्मल सोचते हैं उसके अपोजिट सोचना है। तो यहाँ पे जैसे बैलेंस एज पर कैश बुक था, कैश बुक का अपना बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन मेंशन है क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट और अनफेवरेबल व्हाट एवर रिटेन इन क्वेश्चन, तो वो समझ के और फिर हम करेंगे, अदरवाइज आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो की पॉइंट इन दिस क्वेश्चन, की पॉइंट इन ओवरड्राफ्ट लाइक क्वेश्चंस, ओनली अंडरस्टैंड these three words, either credit, overdraft and unfavorable. So these three key points are always remember solving the bank reconciliation statement. So thank you very much my dear friend. Isso?